Welcome to the Literature Lounge, where writers and authors share their stories behind their stories. Hi, in today's episode, we have with us Shamlal Yadav, a prominent journalist in the Indian Express, known for his investigative reporting in India. He has worked with several reputed media organizations, and is recognized in India and abroad for his in depth stories and commitment to uncovering the truth. His work often focuses on social issues, corruption, and governance. So it's going to be a very interesting episode. Shamlal Yadav has been awarded for his contributions to journalism and continues to be a respected voice in the media industry. He is one of the pioneers of the effective use of the Right to Information Act RTI for investigative reporting. His work on India's polluted rivers, Streams of Filth, India Today, December 30th, 2009, was selected by UNESCO as one of the 20 best investigative reports across the world. This is such an honor for me to have you here with me today, Shamlal ji. Thank you so much. So, first question that comes to me is that, in your experience, how responsive are government agencies to RTI, especially the requests that you put, and what improvements do you think are needed to make the process more effective? Yeah, in fact, like you introduced myself, I was doing lot of other job also, still doing other job. But when this RTI Act was implemented in October 2005, that time I was with India Today. So that time, my editors and everyone decided that RTI should be used for investigative reporting, and we made an effort. We did number of stories in India Today and in my present organization in the Indian Express. But gradually what happened that you may pass, you may enact any law in the parliament and in assemblies, in legislature, but unless your intention is clear, because the government agencies means bureaucrats and the politicians, when they reach in the government, they are trained to hide the information, to conceal the information, to decline any part of information you are asking. So they may legislate a pro people law, but when it comes to provide the information, uh, they behave. Every party behaves like same manner. So what happened gradually when RTI Act was implemented in October 2005? Bureaucrats were little, in fact, they had no experience. They said, "Why, anything can happen, we should provide information." So in next 2 3 years, 4 years, they provided much of the information what we were requesting. But by the time they learned, they learned how to decline information, how to conceal information. सो समय के साथ ऐसा हुआ, जैसा मैं बता रहा हूँ कि 2005 में जब लागू हुआ, मनमोहन सिंह जी की सरकार जिसने आरटीआई एक्ट को लागू किया था, शुरू में बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे, बट उनकी ही सरकार का अप्रोच धीरे धीरे बदलता गया। और अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसमें तो ऐसा हो गया कि लाइक सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स हैव नंबर ऑफ टाइम्स दे हैव सेड दैट इंफॉर्मेशन disclosure is a rule and denial should be an exception, but what is happening is just opposite. Means तो denial आपके है, पास इंफॉर्मेशन नहीं आती है, नहीं आप आ ये रही कह है, रहे हैं। नहीं आ रही है। और ये किसी एक पार्टी का मामला नहीं है, गवर्नमेंट्स इन जनरल एंड इन अक्रॉस द ग्लोब इट्स हैपनिंग। आई एम टेलिंग यू, RTI Act in some name or other is implemented in around 120 countries in the world, and in many countries similar situation is there. You must have heard this Tony Blair government in UK, they have implemented Freedom of Information Act. But when he left his office as prime minister, he, in his biography, he has written so critically the FOI, that how it was being used by journalists and others to discredit his government. So everywhere a politician in power, they treat RTI same way. So gradually it has lost its shine, because such a great law, pro people law, क्योंकि आपको पता है, पहले तो आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स को चिट्ठी लिखते और आपको जवाब आ जाता, तो आप बड़े खुश होते थे।
बट आरटीआई हैज गिवन अ पावर कि 10 रुपए में जा करके पुलिस थाने में या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में साधारण आदमी जा करके और ये कहता था कि ये इंफॉर्मेशन दीजिए नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। तो कुछ साल तक ये चला, लेकिन धीरे धीरे लोगों को लग गया कि कुछ इसमें होना नहीं है। और इंफॉर्मेशन कमीशन जो ट्रिब्यूनल जो हाईएस्ट है आरटीआई का, मीन्स उसके बाद तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन आरटीआई सेटअप में जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हैं, वो भी पहले जो प्रो अप्लीकेंट एक तरह से होते थे, प्रो डिस्क्लोजर होते थे, धीरे धीरे वो भी सिस्टम का पार्ट बन गए, गवर्नमेंट के माइंडसेट से ही काम करने लगे। इसलिए हमें जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो आपको ध्यान होगा 2005 के पहले बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि गवर्नमेंट से आएगी और उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में आ गई या आपको आसानी से मिलने लगी। बट इंफॉर्मेशन कमीशन धीरे धीरे वो भी कमजोर हो गए। 2013 में मुझे ध्यान है जो लास्ट ऑर्डर आया हो जिससे थोड़ा गवर्नमेंट ऑफ द टाइम को थोड़ी सी एम्बरेसमेंट हुई हो, दैट वाज दी जून 2013 ऑर्डर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन डिक्लेयरिंग पॉलिटिकल पार्टीज अंडर आरटीआई एक्ट। सो आप कहीं अब अखबारों में पढ़ते नहीं होंगे कि कोई सीआईसी ने ऑर्डर किया सरकार को ये प्रोवाइड करने के लिए, वो प्रोवाइड करने के लिए, बिकॉज देयर आर नो सच थिंग्स हैपनिंग। और आपको ध्यान होगा 2005 से लेकर 10, 11, 12, 13, 14 मीन्स शुरुआत के वर्षों में बहुत ज्यादा डिस्क्लोजर इसकी वजह से हो रहे थे। तो दैट इज द होल जर्नी ऑफ आरटीआई। बट इट इज इन आवर हैंड, इट इज इन आवर हैंड, क्योंकि जो एक्टिव क्लास है, आरटीआई एक्ट का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट फंक्शनिंग को थोड़ा उसमें रिफॉर्म ला सकता है। बहुत सारा रिफॉर्म आया है उसकी वजह से। जर्नलिस्ट उनमें हैं, वकील उनमें हैं, उनमें रिसर्चर्स हैं, उनमें टीचर्स हैं, जो भी सोशल सोसाइटी में जो एक्टिव क्लास है, एनजीओज हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो उन सबको लगातार पब्लिक इंटरेस्ट की चीजें वो सरकार से गवर्नमेंट मीन्स फ्रॉम प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट अप टू द ग्रास रूट्स लेवल जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनसे डिमांड लगातार इंफॉर्मेशन के करते रहना चाहिए, लड़ते रहना चाहिए, तभी इस कानून को बचाया जा सकता है और उसको रेलिवेंट बनाए रखा जा सकता है। श्यामला जी, आप मेरे ख्याल से इस बात से सहमत होंगे मेरे साथ कि पहले मुझे याद है कि बहुत सारे जो मिनिस्टर्स होते थे ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। जी और मैंने खुद हैंडल किया हुआ है ज्योति बासु जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में। ये जो ट्रेंड है ये पूरा बंद हो चुका है अभी। तो मतलब मीडिया के साथ जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हर मेरे ख्याल से हफ्ते में हुआ करता था, राइटर्स बिल्डिंग दिल्ली कलकत्ता में और बाकी देशों में, तो बाकी स्टेट्स में इंडिया के, तो आपको क्या लगता है कि ये जो ट्रेंड जो चेंज हो चुकी है, क्यों चेंज हुई है? देखिए, ये तो सारा देश क्या दुनिया के भी कई देशों में हो रहा है, वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है। अब वो इसलिए हो रहा है कि आप जबकि आप बात कर रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी पीआईबी में और स्टेट्स के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स जो हैं वहां पर लगातार लोगों से मिलने जुलने का सिलसिला रहता था, क्योंकि उस समय ना तो ईमेल थी, ना ट्विटर था, ना व्हाट्सएप था। अब जो एक प्रेस रिलीज लेकर के कोई आता था, आपको पता है अखबार के ऑफिस में चीफ रिपोर्टर को, ब्यूरो चीफ को मिलता था कि ये हमारी खबर छपवा दीजिए। मीन्स जो पब्लिसिटी वाली खबर होती है वो भी जी। जो है पहले हाँ। इस तरह से आया करती थी। अब आपको किसी मिनिस्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है? वो अपना जो उसका स्टेटमेंट है वो ट्वीट कर दे रहा है और पूरे देश का मीडिया उसको फॉलो कर रहा है। वो ट्विटर पर जो एक्स पर मैसेज पड़ा हुआ है उसको उठा करके सारा देश उस खबर को चला रहा है। बाकी जो आपको इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज और खबरें करनी है उसके लिए मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने की कोई जरूरत है नहीं। तो जो आप कह रहे हैं कि उनका कम्युनिकेशन का तरीका बदल गया, मुझे लगता है वो बाय द टाइम टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कम्युनिकेशन का तरीका उसके हिसाब से बदलेगा ही बदलेगा। मीन्स अब पहले हम यहाँ आप कलकत्ता की बात कर रहे हो, हम लोग यहाँ दिल्ली में पीआईबी में जाते थे। मैंने जैसे एक्टिव रिपोर्टिंग जब शुरू करी तो मुझे ध्यान है कि पीआईबी में रेगुलर जो है उनके इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स वो लेके हार्ड कॉपी प्रेस रिलीज लेके बैठे रहते थे। पहले पार्लियामेंट में जितने सवाल पूछे जाते थे, सवालों के जितने जवाब होते थे, उनकी हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज बनती थी। पूरे इतने मोटे मोटे बंडल वो सर्कुलेट होते थे। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब सब ऑनलाइन आ जाता है।
तो इसमें थोड़ा रोल तो मुझे ये लगता है, कुछ तो सरकारों का अप्रोच ही है कि कम से कम इंटरेक्ट करिए, दूसरा ये भी है कि समय के हिसाब से कम्युनिकेशन का तरीका भी बदला है। तो ये तो वन वे हो गई है ना? हाँ, ऑफ कोर्स ये चिंता की बात तो है ही है, हाँ, लेकिन ये तो वन वे कन्वर्सेशन जी, हो जी, गई है। जी, जी। वो जो तो कहना चाहते हैं, वो जो बोलना चाहते हैं आप सुन लीजिए, आप सवाल मत पूछिए। बिल्कुल, वही जी, वही जो कल्चर है अभी, सवाल बिना पूछ के आपको एक्सेप्ट करना है जो भी रूल्स हैं और जो भी जी, रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं हमारे देश में। एकदम, एकदम। तो श्यामलाल, आई वांट टू आस्क यू कि आपकी इंस्पिरेशन क्या रही है टू राइट एट द हार्ट ऑफ पावर एंड फोकस स्पेसिफिकली चीफ मिनिस्टर्स ऑफ उत्तर प्रदेश? और उत्तर प्रदेश इज नॉट रियली द मोस्ट इजिएस्ट स्टेट। अ, आई नो आई एम गोइंग ऑन रिकॉर्ड व्हाइल सेइंग दिस, एंड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के लिए तो बहुत ही ज्यादा कठिन जगह है वो। नहीं, तो I am telling you, I am from UP. I must tell you, I am 70 born. ना जो हमने न्यूज़पेपर पढ़ने स्टार्ट किए 85 के आसपास से, और हमारी जो जनरेशन है यूपी में, और एज अ पॉलिटिकल रिपोर्टर एंड एज अ जर्नलिस्ट, हम अक्रॉस द सेक्शन लोगों से मिलते रहते हैं। आपको पता ही है कि जर्नलिस्ट से भी मिलते हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स से मिलते हैं, ब्यूरोक्रेट से मिलते हैं, सभी सेक्शन से मिलते हैं। तो हम यूपी की इम्पोर्टेंस जो है वो तो आपको पता ही है। इम्पोर्टेंस ऐसी कुछ तो है नहीं कि यूपी बड़ा डेवलप्ड स्टेट है। इम्पोर्टेंस ये है कि वहां पर 80 लोकसभा सीट्स हैं, जो सन 2000 तक वो 85 सीट्स होती थी। जब उत्तराखंड निकल गया तो 80 सीट बची। देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है, सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट है। 2011 सेंसस के हिसाब से 20 करोड़ है, अब तो बहुत बढ़ गया होगा। सो दैट इज ओनली साइज हैज इट्स इम्पोर्टेंस, और कुछ नहीं है। बट उसमें क्या है, बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज यूपी में न केवल रूल की हैं, सेंटर में अब तक मोदी जी इज नरेंद्र मोदी जी इज 15th प्राइम मिनिस्टर इंडिविजुअल हु इज रनिंग दिस कंट्री। उनमें 6 को छोड़ करके बाकी 9 जो हैं वो या तो यूपी के रहने वाले थे या यूपी से वो पार्लियामेंट के मेंबर बने थे। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूपी। यूपी को रूल करने वाले बड़े बड़े दिग्गज रहे हैं, बट जो आपको मैंने अपनी जनरेशन की बात बताई, ड्यूरिंग दीज इंटरेक्शंस टू अक्रॉस द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, आई I realized that people have no idea of pre 1990 से, जो उनको ज्यादा पता ही नहीं है। उन्होंने बस ये सुन रखा है कि जीबी पंत वाज फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी एंड सुचेता कृपलानी वाज फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर, या उन्होंने नाम सुन रखा है कि बोगड़ा वाज चीफ मिनिस्टर, चौधरी चरण सिंह वाज चीफ मिनिस्टर, वीपी सिंह वाज देयर, बट उनको उनके काम का अंदाजा नहीं है। बड़े बड़े दिग्गज, अब एक सीबी गुप्ता का हम नाम पढ़ेंगे, वो क्या गजब की शख्सियत थे, लेकिन लोगों को कुछ पता नहीं है उनके बारे में। इसी तरह जो अब ये जो हमने काम किया है, हम तो जर्नलिस्ट हैं, हमारा तो जो पर्पस था, हमने ये सोचा कि देयर शुड बी अ बुक कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ यूपी इन दीज डेज पॉलिटिक्स, एंड जो देश भर में उसकी जो इम्पोर्टेंस है और लोगों की जो क्यूरियोसिटी रहती है उसके बारे में जानने की, हमने सोचा कि देयर शुड बी अ बुक on the electoral and political history of UP through the lives of chief ministers. Means 21 chief ministers, 21, 21st is Yogi Adityanath. जी, First was Govind Vallabh. So I thought there should be a book. इसमें बहुत सारी limitations थी। 300 पेज के आसपास हमको फिनिश करना था। आपको पता ही है 21 पर्सनालिटीज, ऐसी पर्सनालिटीज हैं जिन पे एक पर 3-3 वॉल्यूम होने चाहिए, उनको 300 वर्ड में 21 लोगों के को अंदर लिखना। डन। तो दैट वाज मेन जो आइडिया की एक जो यूपी के बाहर का भी व्यक्ति है who can read 300 pages and get an idea that how was politics in 1952 when first election was held under new constitution, our constitution, and how is the situation today, and who was the chief minister, what they did, what they did not, what they wanted to do and but they could not do, कैसे वो बनाए गए, कैसे हटाए गए, क्या पॉलिटिक्स थी, कौन उनके कंपटीटर्स थे। मुझे लगा एक ब्रीफ आइडिया इसमें होना चाहिए। सो वो हमने इसमें डालने की कोशिश की। तो आप अपनी बैकग्राउंड के बारे में हमें हमारे सुनने वालों के लिए बताइए कि अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन इन यूपी प्रायर टू इंडिपेंडेंस एंड हाउ वाज द स्टेट फॉर्म्ड एंड शेप्ड इनटू द प्रेजेंट डे यूपी। तो तो वो
chronicle है, आप जी please tell us. मैं ऐसा है ये आपको प्री इंडिपेंडेंस 9 प्रोविंसेस थे, आपको मालूम है 3 तरह के स्टेट होते थे, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। सो पार्ट ए ये प्रोविंसेस थे जहां इलेक्शन होता था असेंबली का, पार्ट बी थे जहां वो राज्य प्रमुख होते थे, और पार्ट सी है जो जो आज के यूनियन टेरिटरीज हैं उस टाइप के होते थे जहां चीफ कमिश्नर होते थे उनको गवर्न करने के लिए। तो 36-37 में जब पहली बार इलेक्शन असेंबलीज के हुए इन 9 प्रोविंसेस में, और 6 या 7 में जब मेजॉरिटी आ गई कांग्रेस की, आपको ध्यान होगा, तो एक काफी दिनों तक एक संघर्ष, उनमें यूनाइटेड प्रोविंस भी था। इसका नाम पहले, यूपी का नाम पहले यूनाइटेड प्रोविंस था, उसके पहले यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध था, 37 में ये यूनाइटेड प्रोविंस बना। सो यूनाइटेड प्रोविंस में भी कांग्रेस को मेजॉरिटी मिल गई, लेकिन ये काफी दिनों तक, कई महीनों तक ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन चलता रहा गांधी जी का, और जो उस समय कांग्रेस की लीडरशिप थी, कि किस हद तक गवर्नमेंट उनको काम करने देगी, नई जो सरकारें बनने वाली हैं। उस समय प्रीमियर कहा जाता था, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रीमियर पोस्ट होती थी, चीफ मिनिस्टर की जगह प्रीमियर कहे जाते थे। तो उस 3-4 महीने तक सरकार नहीं बन पाई, मीन्स ओथ नहीं ले पाए प्रीमियर्स। उस बीच में एक यूपी के, जिनका नाम बहुत नहीं है प्रचलित, यहाँ बुलंदशहर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक नवाब छतारी होते थे। छतारी इज अ प्लेस, स्मॉल स्टेट, रॉयल फैमिली थी। नवाब छतारी जो है, उनको इंटरिम ओथ दिलाई गई थी 3-4 महीने के लिए। अप्रैल में, जहां तक मुझे ध्यान है, 37 में रिजल्ट आए थे, और जुलाई में जीबी पंत को ओथ दिलाई गई, जब एग्रीमेंट हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं का, तब जा करके ये ओथ ली थी। उसके बाद जैसा देश भर में, वो आपको मालूम है कि कांग्रेस की जहां जहां गवर्नमेंट थी, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर उन्होंने रिजाइन किया, फिर इलेक्शन हुए, तो पंत, जीबी पंत वाज कंटिन्यूइंग। जीबी पंत का नेहरू जी के साथ बड़ा एक अजीब रिश्ता था, और इतना वो नेहरू जी जिसकी वजह से उनका लिहाज करते थे। साइमन कमीशन का जब प्रोटेस्ट हो रहा था लखनऊ में, उसके दौरान नेहरू जी को, हमें थोड़ा बताइए साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन का जो है, देश भर में प्रोटेस्ट हुआ था, आपको मालूम ही है। तो लखनऊ में उसका जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, नेहरू जी को बहुत लाठियां पड़ रही थी, पुलिस लाठीचार्ज, और जीबी पंत की हाइट बहुत ज्यादा थी, नेहरू जी से भी ज्यादा थी, काफी वो ताकतवर थे। वो उनके ऊपर लेट गए थे वर्चुअली, और पंत जी का ये हाल था कि लास्ट तक उनकी गर्दन जो है, उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होती थी, इतना लाठियां लगी थी, और वो उनकी गर्दन ऐसे हिलती थी। तो इस वजह से नेहरू जी उनका रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर बनने की बारी आई, प्रीमियर बनने की बारी, और खास तौर से जब आजादी के बाद पहला मुख्यमंत्री बनना था, तो नेहरू जी चाहते थे, वहां एक पुरुषोत्तम दास टंडन बड़े नेता थे, जो जो भारत रत्न भी जिनको मिला, वो यूपी के स्पीकर उनको बनाया गया। वो उनको चाहते थे चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उनका फार्मर मूवमेंट में बड़ा रोल था। यूपी में पीजेंट्स मूवमेंट बहुत हुआ था, आपको ध्यान होगा 20s 30s, उसमें उनका काफी रोल था। लेकिन उस समय थोड़ा डेमोक्रेटिक ढंग से फैसले होते थे, तो नेहरू जी की चली नहीं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पंत जी का नाम चला, और पंत जी जो है कंटिन्यू किए। तो ये तो 47 के पहले की बात है। उसके बाद फिर इंटरिम अरेंजमेंट चलता रहा। 52 में जब पहला इलेक्शन होता है, उस समय ये आपके दर्शकों को जरूर जानना चाहिए, बहुत लोगों को शायद पता भी होगा, कि पहले जो असेंबली और लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, उसका जब डिलिमिटेशन हुआ, बहुत डिफरेंट तरीके का। जब लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन लागू हुआ, तो आज की तरह से जैसे सेपरेट SC ST सीट्स हैं और बाकी जनरल सीट्स हैं, ऐसा नहीं होता था। वो ज्यादातर जो सीटें थी, वो 2 मेंबर सीटें होती थी, मीन्स, और 2 सीटें, एक लोकसभा सीट और एक असेंबली सीट देश में ऐसी थी। एक कलकत्ता की सीट थी जो 3 मेंबर सीट थी 52 में, वहां पर एक जनरल, एक SC, एक ST कैंडिडेट, 3 MP चुने जाते थे। और इसी तरह से बॉम्बे स्टेट तक था, महाराष्ट्र तो बाद में बना। बॉम्बे स्टेट में एक सीट थी नासिक इगतपुरी असेंबली सेगमेंट,
जहां पर 3 मेंबर चुने जाते थे, एक एससी एमएलए होगा, एक एसटी एमएलए होगा और एक जनरल कैटेगरी का एमएलए होगा। सो इस तरह से यूपी असेंबली जब पहला चुनाव होता है 1952 में, देयर वर 263 सिंगल मेंबर सीट्स एंड 83 डबल मेंबर सीट्स, जहां से 2 मेंबर चुने जाते थे। इस तरह से 420 429 उस समय 430 उस समय असेंबली की स्ट्रेंथ थी, और कांग्रेस को उस समय 388 सीट्स मिली, 388, इतनी बड़ी मेजॉरिटी, दैट इज रिकॉर्ड सो फार। उसके बाद जो सेकेंड टाइम किसी रूलिंग पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, वो इमरजेंसी के बाद 77 में जनता पार्टी को 352 मिली थी। तो पंत जी ने इस तरह से कंटिन्यू किया, लेकिन जो आप उसके बाद जो पॉलिटिकल सिचुएशन बदलती है, जीवी पंत मींस 52 से वो कंटिन्यू किए, लेकिन जो उसके बाद से एक सिलसिला शुरू हुआ यूपी में अनस्टेबल करने का स्टेट गवर्नमेंट्स को, क्योंकि सेंटर की लीडरशिप हमेशा अपने को इनसिक्योर फील करती है यूपी के चीफ मिनिस्टर्स, और वो वहीं से चालू हो गया था। नेहरू जी ने उनको 1954 के एंड में कॉल किया कि आप दिल्ली आ जाइए, एंड ही वाज स्वर्न इन एज यूनियन होम मिनिस्टर, और वहां पर उनको डॉक्टर संपूर्णानंद थे, एक वाराणसी के बड़े एकेडमिशियन थे, वो चीफ मिनिस्टर बने। So that is how the first election and जो यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बाद में फिर उत्तर प्रदेश बन गया, उसका नाम उत्तर प्रदेश रखने के लिए भी बहुत डिबेट हुई है। इनफैक्ट 1939 में एक यूपी कांग्रेस की मीटिंग हुई थी फर्रुखाबाद में, यूपी में एक जगह है फर्रुखाबाद, वहां पर एक सजेशन था कि यूनाइटेड प्रोविंस से इसका नाम बदल के आर्यावर्त रख दिया जाए, बट that was not accepted, वो कंसिडरिंग इट्स कल्चरल एंड हिस्टोरिकल, यहाँ पर रामकृष्ण शंकर सबसे रिलेटेड ये हैं, तो लेकिन वो ठीक नहीं समझा गया, फिर उत्तर प्रदेश नाम वहां से लिया गया। और 52 के बाद जब पंत जी इधर आ जाते हैं यूनियन होम मिनिस्टर बन के, यहाँ पर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन होता है, राज्यों का पुनर्गठन होता है, उसके बाद भी यूपी की साइज पे कोई असर नहीं पड़ा। उनकी लोकसभा सीटें उस समय 85 रखी गई, और क्योंकि उसके डिवीजन के बहुत डिमांड थी कि स्टेट को छोटा किया जाए, लेकिन क्योंकि पंत जी सीएम रह चुके थे, पंत वाज यूनियन होम मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ ऑल दिस स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन, तो इन्होंने यूपी को छोटा नहीं होने दिया, यूपी की साइज उस समय वैसी की वैसी बनी रही। सो दैट इज हाउ प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स ने कैसे ट्रांसफॉर्म किया, उसके बाद से तो जो चीजें चल रही हैं आप देख रहे हैं सब कुछ। बिल्कुल देख रहे हैं। जी। So, among the chief ministers you wrote about, who do you think has had the most significant impact on Uttar Pradesh political landscape? और क्यों आप जिसको भी आप बोलेंगे, थोड़ा सा हमें बताइए, आपको क्यों लगता है नहीं, कि ज्यादा मैं impact आपको रही है? बता रहा हूँ, इनफैक्ट यूपी में क्या हुआ, कुछ लोगों को बहुत थोड़ा समय मिला काम करने, जी। लाइक चौधरी चरण सिंह 2 बार चीफ मिनिस्टर की ओथ लिए, लेकिन 1.5 साल रह पाए से, हैं? इसी तरह से एक सीवी गुप्ता थे, बहुत डैशिंग पर्सनालिटी, बहुत विजनरी, वो कहते थे मेरा सपना है कि यूपी को मैं इंडस्ट्रीज से पार्ट दूं, लेकिन वो 4 बार सीएम की ओथ ली उन्होंने, और 4 साल नहीं पूरे कर पाए। उनको कामराज प्लान के जरिए जिन लोगों को हटाया गया, वो उसमें भी टारगेट बने। तो आप जो पर्सनालिटीज की बात कर रहे हो, पंत, अब जैसे कई हैं जिनका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन है, जस्ट इमेजिन कि आज जो कंट्री की सिचुएशन है, यूपी और या पूरे देश की सिचुएशन 1947 में या अर्ली 50s में क्या रही होगी, यूपी के उस समय के अखबार अगर हम देखते हैं, उस समय की असेंबली की डिबेट देखते हैं, पार्लियामेंट की देखिए, आपको खबरें मिलेंगी, जगह जगह हंगर से डेथ हुआ करती थी, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, डेकोइटी सबसे बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुआ करती थी, प्रॉपर रोड्स नहीं थे, तो उस जी। समय वैसे वैसे चैलेंजेस थे उनके, इतना फंड कलेक्शन नहीं था, टैक्सेस का इतना कलेक्शन नहीं था, यूनिवर्सिटीज नहीं थी प्रॉपर, आपको मालूम है। तो पंत जी फर्स्ट चीफ मिनिस्टर का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यूपी को है, ये दैट जमींदारी एबॉलिशन। आप देखेंगे यूपी में, आप देखिए नक्सलिज्म नहीं है, 1-2 जिलों में जो छुटपुट है, अदरवाइज नक्सलिज्म नहीं है, क्योंकि यहाँ जमींदारी एबॉलिशन बहुत इफेक्टिवली वो इम्प्लीमेंट हो गया था। इसी तरह से उनके बाद संपूर्णानंद जी आते हैं, उन्होंने थोड़ा एजुकेशन के लिए कुछ काम किया, लेकिन उन्होंने एक
गलती कर दी और उसकी वजह से उनको रिजाइन करना पड़ गया। एंड उसके बाद सीवी गुप्ता थे। सीवी गुप्ता इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बड़ा काम करना चाहते थे, उन्होंने कुछ एफर्ट किए लेकिन वो भी नहीं रह पाए। तो इनका सबका लेकिन इम्पैक्ट स्टेट की पॉलिसीज पर आज तक देखने को मिलता है। चौधरी चरण सिंह रूरल डेवलपमेंट के लिए बड़ा काम करते थे। उन्होंने आते ही पहली बार उनकी सरकार बनी 67 में, जब उन्होंने कांग्रेस को तोड़ करके और 20 पार्टीज के अलायंस में सरकार बनाई, तो पहला फैसला बड़ा उन्होंने किया कि जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलते हैं कास्ट के नेम पर, लाइक यादव कॉलेज, जाट कॉलेज, ब्राह्मण कॉलेज, क्षत्रिय कॉलेज, उनको उन्होंने बोला, ये अप्रैल में सरकार बनी थी, बोला 30 जून तक सब अपना नाम बदल ले, अदरवाइज सबको गवर्नमेंट ग्रांट बंद हो जाएगा। दैट वाज अ बिग डिसीजन। आज भी यूपी में कोई कास्ट नेम पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्निशन नहीं मिलती। तो दैट बिकॉज दैट डिसीजन। देन उनका सेकंड रिजीम थोड़े दिन के लिए आया, उन्होंने यूपी में गुंडा एक्ट लागू किया जो आज तक सारी सरकारें यूज करती हैं। तो सुचेता कृपलानी वाज फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी इंडियन स्टेट। उन्होंने लड़कियों के लिए 10वीं तक एजुकेशन फ्री कर दी। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को बहुत ज्यादा पैसा देने के ये खिलाफ थे तीनों, मींस चरण सिंह एंड सीवी गुप्ता एंड सुचेता कृपलानी, तीनों ये चाहते थे, ये इनको लगता था इनको बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को और ये काम नहीं करते। तो वहां से चलते हर एक का थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट है। उसके बाद आप देखिए, टीएन सिंह एक आए थे 6 महीने के लिए, अपना बाई इलेक्शन हार गए, लेकिन एक काम वो कर गए थे, 6.25 एकड़ तक की जमीन का लगान माफ करना था, वो करके चले गए। तो हर एक का कुछ ना कुछ रोल रहा है। एक अब जैसे कमलापत त्रिपाठी थे, उनके टाइम में पीएसी म्यूटनी हो गई और उनको अपनी ही उन्हीं की पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसमिस कर दिया। वो तो एक बड़ी ट्रेजिक घटना है यूपी की हिस्ट्री में। लेकिन बहुगुणा आते हैं, एचएन बहुगुणा। बहुगुणा ने बहुत बड़ा काम किया था प्राइवेट मनी लेंडर्स से लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अपने समय में जैसे वीपी सिंह आते हैं। वीपी सिंह 1980 में बने थे चीफ मिनिस्टर। उन्होंने डेकोइटी को खत्म करने के लिए, जो एनकाउंटर अभी योगी जी के टाइम में हो रहे हैं आप भूल जाएंगे अगर वीपी सिंह का पढ़ेंगे तो। सो उस समय रियल एनकाउंटर्स उस समय होते थे। 2 साल ही रहे वीपी सिंह, 2 साल से थोड़ा ज्यादा। इसी तरह से उनके थोड़ा पहले राम नरेश यादव थे, 77 में बने। उन्होंने ओबीसी के लिए रिजर्वेशन 15% यूपी में पहली बार लागू किया। उसके लिए कमेटी तो बहुगुणा ने बनाई थी और कैबिनेट डिसीजन एनडी तिवारी गवर्नमेंट का था, लेकिन इम्प्लीमेंट किया था इनकी गवर्नमेंट। देन एनडी तिवारी, उनकी पर्सनल लाइफ बाद में बहुत डिस्टर्ब हो गई, आपने पढ़ा ही होगा सब अखबारों में। लेकिन एज ए चीफ मिनिस्टर उन्होंने कई काम बड़े अच्छे किए। नोएडा जो अभी इतना प्रॉस्परस सिटी है, वो एनडी तिवारी का आइडिया था। नोएडा की तरह 2 शहर उन्होंने और बसाने की कोशिश की, वो नहीं सक्सेसफुल हुए। ये नोएडा तो प्रॉक्सिमिटी टू नेशनल कैपिटल उसकी वजह से थोड़ा हो गया। तो सबका कुछ ना कुछ ये है। और उसके बाद आप जब 90s पहुंचते पहुंचते जो है पॉलिटिक्स ऐसा शेप ले लेती है, वो जो ये नारे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। देन इमरजेंस ऑफ मायावती जी एंड मुलायम सिंह जी एंड कल्याण सिंह जी, वो पूरा पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है यूपी का चेंज हो जाता है। लेकिन उससे ऐसे लोगों को, ऐसे बहुत सारे बहुत ऑर्डिनरी फैमिलीज के लोग हैं, उनको सरकार चलाने का मौका मिला और एक इंक्लूसिवनेस पॉलिटिक्स की और गवर्नमेंट की बनी। पहले बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब पर एक खास तबकों का ही कंट्रोल होता था। धीरे धीरे वो थोड़ा गवर्नमेंट जॉब्स भी इंक्लूसिव बने बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन एंड ऑल दैट। इनके आने से, जो अब मायावती जी के आने से या मुलायम सिंह जी के आने से या कल्याण सिंह जी के आने से, खास करके एससीज ओबीसीज, इनको लखनऊ में पावर कॉरिडोर में थोड़ा घुसने का मौका मिला, ये हर कोई मानेगा। तो आप ये कह रहे हैं किस चीफ मिनिस्टर का? आई एम टेलिंग यू, मोस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स हैव some policies which have impact on UP. But why is it that no chief minister between the years of 1952 to 2007, 5 साल से ज्यादा वो एक सिंगल असेंबली को चला ही नहीं सके यूपी में? नहीं, ये क्या कारण है? मैं बता रहा हूँ। इसमें कारण ये नहीं है कि वो चला नहीं सके, कारण दूसरा है। वो जैसे ही लगता था कि वो चलाने लगे हैं और उनके कंट्रोल में यूपी का सिस्टम आ गया है, तो उनको केंद्र सरकार बदल देती थी।
क्योंकि केंद्र सरकार कभी भी यूपी में मजबूत चीफ मिनिस्टर और मजबूत गवर्नमेंट नहीं देखना चाहती थी, बिकॉज ऑलवेज दे फेल्ट इनसिक्योर फ्रॉम दीज। क्योंकि आपको मालूम है 85 पहले 85 और अब 80 चीफ मिनिस्टर्स के साथ, तो इसलिए 2007 में जब मायावती जी बनती हैं तो दैट वाज द फर्स्ट गवर्नमेंट, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर मायावती जी हु कंप्लीटेड 5 ईयर इन सिंगल असेंबली। उसके पहले डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने 5 साल से ज्यादा तो किया था टाइम पूरा, लेकिन वो 2 असेंबलीज का जोड़ करके था। अदरवाइज जैसे एनडी तिवारी का जो मैं अभी बता रहा था, 4 बार ओथ लिए सीएम की, लेकिन 4 साल नहीं पूरा कर पाए। सीबी गुप्ता 4 बार ओथ लिए, 4 साल नहीं पूरा कर पाए। ऐसे ही कोई 2 साल रहा, कोई 1 साल रहा, कोई 1.5 साल रहा। तो जब आप किसी को वहां खड़े ही नहीं होने देते थे, जब हमें ध्यान है जब कमलापति त्रिपाठी बनते हैं 1971 में, उस समय इंदिरा गांधी जी ने स्टेटमेंट कहीं पर दिया था लखनऊ में कि अब जो है केंद्र और यूपी का कोल्ड वार खत्म हुआ, अब जो है यूपी कुछ प्रोग्रेस करेगा। तो उसका मतलब ये था, उनके कहने का मतलब क्या ये था कि उसके पहले सेंटर और स्टेट में कोल्ड वार ही चल रहा था। ये अब जैसे ये किताब को अगर आप पढ़ेंगे, इसमें आई हैव कोटेड लेटर्स ऑफ सुचेता कृपलानी जी which she had written to then Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru ji only after taking few months of her oath. She wrote that उनका कहना था कि यहाँ पर इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स है, हर कोई नेता इतना पॉलिटिक्स में लगा हुआ है कि और कोई काम ही नहीं है, इसीलिए राज्य प्रॉस्पर कर नहीं पा रहा है। तो हमारा सारा टाइम जो है इनकी पॉलिटिक्स से निपटने में ही लगता है। सो दैट इज द सिचुएशन इवन टुडे। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कांग्रेस के साथ हुआ करता, ये जो है थोड़े दिन के लिए आपको ध्यान होगा जनता पार्टी की सरकार बनी 77 में, उसमें भी राम नरेश यादव की सरकार ने कोई ऑर्डर कर दिया और उस पर डिस्प्यूट हो गया, फिर बार बार लेजिस्लेचर पार्टी जो थी उसमें वोटिंग होती थी, एक बार उनका मेजॉरिटी रही नहीं तो रिजाइन करना पड़ा, फिर दूसरे सीएम बने बनारसी दास, और उसी गवर्नमेंट में राम नरेश यादव फिर डिप्टी सीएम बने, पहले सीएम थे फिर डिप्टी सीएम बने। सो ये चलता रहा। उसके बाद देखिए बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का और कल्याण सिंह जी का लगातार झगड़ा चलता रहा, शायद आपको ध्यान में होगा 99 में। और जब जैसे अभी हुआ है 98 में 58 सीटें थी बीजेपी की लोकसभा में यूपी से, और 99 में वो 30 रह गई, मीन्स ऑलमोस्ट हाफ। जैसे अभी हुआ है कि 62 थी 2019 में, और अभी 33 रह गई हैं, ऑलमोस्ट हाफ। तो उस समय कई महीनों तक यूं ही चलता रहा, उसके बाद कल्याण सिंह जी को हटा दिया वाजपेयी जी ने। सो ये जो है ये लगातार सिलसिला चलता रहता है, क्योंकि देश का जो प्रधानमंत्री होता है, यूपी के चीफ मिनिस्टर, पॉलिटिकली उतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट प्राइम मिनिस्टर के बाद वही है, आपको मालूम है, तो हमेशा वो इनसिक्योर फील करता है, नंबर एक। दूसरा ये कि जो यूपी का चीफ मिनिस्टर बनता है, वो सिचुएशन ऐसी है, वहां की पॉलिटिक्स ऐसी है कि वो पहले प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना पहले देखता है और चीफ मिनिस्टर के तौर पे काम करना बाद में शुरू करता है। सो दोनों में इतना क्लैश चलता रहा, इसलिए आप देखिए मायावती जी की सरकार ने 5 साल पूरा किया क्योंकि उनको अकेले बहुमत मिला, एंड हर पार्टी इज वो उनकी सेंटर में सरकार नहीं थी। अगर कोई शायद बीएसपी की केंद्र सरकार होती तो उनको भी नहीं चलने देती। उनके बाद जो सेकंड टाइम पूरा किया वो अखिलेश यादव जी ने पूरा किया। अखिलेश यादव जी भी रीजनल पार्टी हैं, वो उनकी भी सेंटर में गवर्नमेंट नहीं थी, नहीं तो उनको भी नहीं पूरा करने देते। तो उस तरह से एक एक्सेप्शन सिर्फ योगी आदित्यनाथ का है कि उसी पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसी पार्टी की स्टेट में गवर्नमेंट है, फिर भी योगी आदित्यनाथ जी ने 5 साल पूरा किया और सेकेंड टर्म भी मीन्स पार्टी को बहुमत ले आए और अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 2007 के पहले की वजहें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, जो जब केंद्र और राज्य दोनों में एक पार्टी की सरकार रहती थी तो हमेशा वो, आप पढ़ेंगे 60s 50s 60s का, तो नेहरू जी यूपी के नेताओं से बहुत वही इनसिक्योरिटी फीलिंग हमेशा रहती, क्योंकि सब देखिए उस समय कोई ऐसे लोग नहीं थे कि इधर उधर से आए हुए, सब वो फ्रीडम स्ट्रगल में सारे फ्रीडम फाइटर्स थे। कोई महीने 2 महीने कई वर्षों वर्षों तक जेल में रहे हुए लोग थे, और हर कोई स्टालवर्ट था, वो कोई ऐसा नहीं था कि किसी की कृपा पर था।
कितनी बड़ी बात कहा है आपने, सब स्टॉलवर्ट्स थे, किसी की कृपा पे नहीं थे। जी जी तो अभी जो मेरा अगला सवाल है कि गोविंद बल्लभ पंत और योगी आदित्यनाथ दोनों ही बहुत प्रोमिनेंट फिगर्स रहे हैं आपकी किताब में। जी जी। तो इन दोनों का जो लीडरशिप स्टाइल और जो पॉलिसीज, इनको कंपेयर किया जाए तो हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपको क्या लगता है कि दोनों के बीच में अंतर या कंपैरिजन में एक सेम टाइप की जो पॉलिसीज रहे हैं। देखिए, तो मेरा मानना है कि दोनों में उस तरह से हमको कंपैरिजन इसलिए नहीं करना चाहिए कि पंत जी हैड डिफरेंट पर्सनालिटी एंड डिफरेंट रोल, और वो जो 52 के बाद मीन्स उसके पहले जो थे इंटरिम थे या उसके पहले जो प्रीमियर थे, उस टेन्योर को आप हटा दीजिए, तो एज ए चीफ मिनिस्टर ही वर्क लेस देन 3 इयर्स। उस समय जो है कंट्री में नई पॉलिटिक्स शेप ले रही थी इंडिपेंडेंट इंडिया में। आपको मालूम है कि उसके पहले हम लोग उस देश के रहने वाले हैं जहां हम लोग बचपन में किस्से सुनते आए कि एक राजा था, एक रानी थी। वहां पर राजा रानी के देश में जब उनके बच्चे राजा बनते थे, फिर उनके बच्चे राजा बनते थे। अब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ये सिचुएशन आई कि हम अपना राजा रानी जो है वो चुन सकते हैं। वो जी। अगर किसी नेता का बेटा भी होगा तो पोल तो हाँ। कॉन्टेस्ट करना ही है ना। तो कितना एक्साइटमेंट 52 में रहा होगा, आप जरा अंदाज लगाइए कि लोग कैसे अच्छा उस समय 21 ईयर थी पोलिंग की एज, 17-18 करोड़ वोटर पूरे देश भर में थे सिर्फ पहली लोकसभा में, और असेंबलीज का भी साथ में हुआ था चुनाव। 67 तक तो साइमल्टेनियस इलेक्शन हो रहे थे ना, जो अभी डिमांड चल रही है लोकसभा और असेंबलीज में। 67 के बाद फिर वो डिस्टरबेंस चालू हुआ, तो कभी उसके बाद साइमल्टेनियस हो नहीं पाया। तो पंत जी का डिफरेंट है। पंत जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो जमींदारी एबॉलिशन है। उसके बाद जो है लॉ एंड ऑर्डर, देखिए आजादी के बाद कई देश के कई हिस्सों में बड़े दंगे हुए थे। आप पढ़ेंगे उस समय का ये तो पता चलेगा। लेकिन यूनाइटेड प्रोविंस जो उस समय था, और यूपी जो बना बाद में, मोटे तौर पे वहां शांति थी। तो और पंत जी का अगर थोड़ा ज्यादा टाइम मिला होता तो शायद फिर और प्रॉब्लम्स जैसे आज योगी आदित्यनाथ जी फेस कर रहे हैं वो उनको भी फेस हो सकता है करनी पड़ती, कॉन्फ्लिक्टिंग दैट पर्सनालिटीज और उनकी एम्बिशंस में। लेकिन उनको ज्यादा टाइम मिला नहीं, तो वही सारे लोग जो उनके अंडर में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, जैसे ही सरकार बदली, संपूर्णानंद जी आए तो झगड़े चालू हो गए। उसमें चौधरी चरण सिंह ने इस्तीफा दे दिया, सीबी गुप्ता ने बड़ी उनके खिलाफ, उन पर आरोप लगता था कॉन्स्पिरेसी का, डिसलॉज करने का उनकी सरकार को। 100 के करीब एमएलए असेंबली में खड़े होकर बोले कि कांग्रेस के एमएलए कि हम लोग संपूर्णानंद सरकार की पॉलिसीज को पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह का प्रोटेस्ट चलने लगा था उनके बाद की गवर्नमेंट। तो पंत जी को मेरा कहना है कि बहुत छोटा सा टेन्योर उनको मिला, उसमें फाउंडेशन बन रही थी गवर्नमेंट की यूपी में। डिफरेंट चैलेंजेस थे। आज की जो अब 2017 अनवर्ड जो सिचुएशन है, जब से योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, वो ना तो केंद्र में नेहरू जी हैं और ना जो है वो स्टेट में पंत जी हैं। यहाँ योगी जी हैं और यहाँ मोदी जी हैं। तो इनकी अपनी डिफरेंट केमिस्ट्री है, डिफरेंट ये है। लेकिन अब पंत जी से लेके योगी आदित्यनाथ जी तक, एक मैं चूंकि यूपी का रहने वाला हूं, तो आई ऑलवेज थिंक कि जो सब कुछ ये हुआ है ना, जो इंस्टेबिलिटी, इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, उसकी जो वजह से आज जो यूपी का आदमी पूरे देश में अनस्किल्ड लेबर भेजने का एक बहुत बड़ा सोर्स रह गया है। आप भी इसको महसूस करते होंगे। ये हमको यूपी वाला होने के नाते कई बार बड़ी मैं सोचता हूँ कि क्या इन सब का ये ड्रीम नहीं होना चाहिए था कि हम यूपी को एक ऐसा स्टेट बनाए जहां दूसरे स्टेट से लोग जो है आए काम करने के लिए। ऐसा नहीं कि मुझे कोई दूसरे स्टेट से कोई ईर्ष्या है, लेकिन आज यूपी का आदमी क्यों ऐसा हो गया है कि वो जो है देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सिटीज में वहां मूंगफली बेचने के लिए और रिक्शा चलाने के लिए और फैक्ट्रीज में बोरे ढोने के लिए घूम रहा है। because we have no proper education, we have because we have no industries are not flourishing in यूपी। यहाँ थोड़ा बहुत जो चलती हैं, आपको पता है जो दिल्ली का बॉर्डर एरिया है ना,
जहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक रहता है, जहाँ दिल्ली की वजह से प्रॉक्सिमिटी का जिसको फायदा मिलता है, नोएडा में इंडस्ट्री चलेंगी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि गोरखपुर में, इलाहाबाद में, प्रयागराज जो अब बन गया है, वाराणसी में, अयोध्या में, श्रावस्ती में, ललितपुर में, लखनऊ में, इन एवरी रीजन क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि वहां पर अच्छी भली इंडस्ट्री चले जैसे दूसरे राज्यों में चलती हैं? क्यों ऐसा नहीं हो सकता है? अभी मैं ये NIRF का जो रैंकिंग देख रहा था इंस्टीट्यूशंस का, यूपी की मैं उसमें खोज रहा था कि कोई स्टेट यूनिवर्सिटी भी है क्या टॉप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में। तो अब यूपी वाले इससे खुश हो सकते हैं कि IIT, यूपी की IITs है, IIT कानपुर है, IIT BHU फला भी है, है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। तो क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि यूपी की स्टेट यूनिवर्सिटीज उसमें कहाँ खड़ी हैं? तो ये सब जो है, चाहे वो पंत जी हो या योगी आदित्यनाथ जी हो या बीच वाले जितने हुए हैं, ये हमें लगता है कि अब इनको इस वजह से नहीं माफ किया जा सकता कि उनको टाइम ही नहीं मिला, 2 साल का मिला या 3 साल। हालांकि कई लोगों को तो 5 साल से ज्यादा का, 5 लोगों को 5 साल से ज्यादा का मिला, जिनमें से 3 को एक टेन्योर 5 साल का मिला, एक असेंबली। तो इन लोगों को तो सफिशियंट टाइम भी मिला। तो क्यों नहीं ऐसा? अब यूपी में 36 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, वैसे आपको बता रहा हूँ। 36 में जो है वो 33 है जो पोस्ट इंडिपेंडेंस बनी, और उनमें से 21 यूनिवर्सिटीज सिर्फ 4 चीफ मिनिस्टर्स ने बनवाई। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती एंड HN बहुगुणा। ये सब इसमें यूनिवर्सिटी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें टेक्निकल और एग्रीकल्चर सब मिला के बात कर रहा हूँ। तो अब शायद होते पुराने जो लोग अब नहीं है, तो ये कहते कि हमारे समय रिसोर्सेज ही नहीं थे। लेकिन जो बनी हुई है उनमें क्वालिटी आए कैसे, ये क्या इन सबका कंसर्न नहीं होना चाहिए? क्या क्या किसी सरकार को या सरकारों को या चीफ मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर्स को बस इसमें ही खुश रहना चाहिए कि हमने इतने एनकाउंटर करा दिए या इतने लोगों को जेल भेज दिया? दैट इज वन एस्पेक्ट। लॉ एंड ऑर्डर इज ऑलवेज नेसेसरी, दे मस्ट डू व्हेन इट इज नेसेसरी। लेकिन लेकिन जिससे यहाँ की जनरेशंस पर असर पड़ने वाला है, वो काम कौन करेगा? क्यों ऐसा विजन और ऐसा ड्रीम यहाँ राज करने वालों को नहीं रहता? जिसको प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिल जाएगा बन जाएगा, बने। पहले भी लोग इस ड्रीम में ही यूपी में काम करना बंद कर देते थे। तो ये सारे कंसर्न्स हैं जो हमें लगता है, इसलिए आप अगर हमारी इस किताब को पढ़ेंगे तो हमने इन इश्यूज को उसमें जगह जगह जहां जैसे मायावती जी हैं, जिन यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं अभी, उनमें से 18 जो है मायावती जी के डिफरेंट रिजीम्स के बनाए हुए, जो कि अच्छी बात है। जिला बनने से बहुत सारा डेवलपमेंट होता है। इसी तरह हमने यूनिवर्सिटीज वाले एस्पेक्ट को, और फिर यूपी में 2 लाख से ज्यादा बीटेक की सीटें हैं कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। लेकिन मैं उसका हिसाब लगाता हूँ कि 2 लाख का 10% यानी 20,000 को एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है हर साल यूपी में, आप समझ सकते हैं। सो दीज आर द कंसर्न। हमें लगा कि ये किताब लिख करके हम थोड़ा ये जगाने की कोशिश करते हैं लोगों में, जो यूपी वाले हैं उनमें भी, जो बाहर वाले हैं उनमें भी, कि कुछ लोगों की सोच थोड़ा जो है वो प्रभावित हो। तो यूपी में सुचिता कृपलानी जी वो चीफ मिनिस्टर रही हैं 60s में, जी हाँ। और डबल CM रही हैं इस जी इंडियन स्टेट की, जी। तो उनका टेन्योर कैसा रहा है? हम लोग इतना ज्यादा सुनते हैं क्राइम और एक पेट्रियार्की के एक अजीब नहीं उनका, भयानक सा एक नहीं नहीं, माहौल। उनका तो उनका रिजीम जो है, जितना हमने पढ़ा और समझा, उसके हिसाब से शी विल बी अमंग द वेल परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर्स। तो जैसा मैंने अभी बताया कि उन्होंने लड़कियों की एजुकेशन फ्री की जी, थी, उन्होंने सिस्टम को इंक्लूसिव बनाने के लिए SCs वगैरह की के रिजर्वेशन होने के बावजूद बहुत प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं था। उन्होंने उसकी लिमिट काफी एक्सटेंड कर दी कि इतना ग्रुप C में 44% दे दो कि उनकी संख्या बढ़े पहले सिस्टम में किसी तरह से। देन उनकी और दूसरी बहुत सी सिंपल लाइफ जीती थी, गांधीयन थी, आपको पता है, खादी पहनती थी। वो चीफ मिनिस्टर के बंगले में नहीं रहती थी। चीफ मिनिस्टर का इतना बड़ा बंगला 5 कालिदास मार्ग जो है, उस बंगले में पीछे 2 कमरे का स्टाफ क्वार्टर था, उसमें रहती थी।
तो काम उनके टाइम में बहुत अच्छे हुए हैं। देन ये जो आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन का फाउंडेशन जो यूपी में बड़ा काम हुआ, उस टाइम में हुआ, उनका ही रिजीम है। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि उनको उनका उनका सिलेक्शन भी बड़े अजीब तरीके से। वो थी बंगाली घर में पैदा हुई और सिंधी से उन्होंने विवाह किया था। दिल्ली में पढ़ी लिखी थी, उनके फादर अंबाला में पोस्टेड थे, गवर्नमेंट सर्जन थे। ये दिल्ली से पढ़ाई लिखाई करके गई थी। तो उनको जो है वहां चीफ मिनिस्टर के लिए एलिवेट कराने में सीबी गुप्ता का बड़ा रोल था। चंद्रभान गुप्ता जो सीएम थे 63 तक, जो कामराज प्लान के तहत हटाए गए। लेकिन जब वो बन गई तो गुप्ता जी ने ही और गुप्ता जी के लोग ही उनको काम नहीं करने देना शुरू कर दिया, क्योंकि अब शायद पहले उनको लगा रहा होगा कि हमारी तरह से एकदम चलेंगी, जो हम कहेंगे वो करेंगे। तो पॉलिटिक्स वाज ऑलवेज देयर। लेकिन सुचेता जी का जो टेन्योर है, इन माय ओपिनियन, इन माय अंडरस्टैंडिंग, इट इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्म्ड चीफ मिनिस्टर्स में ही 21 में से अगर हम 5 टॉप की लिस्ट बनाएंगे तो सी विल बी वन ऑफ देम। अब ये कुछ तो अच्छा बुरा सबसे होता है, लेकिन अच्छा काम किया था। बट उनको ये हालत कर दी कि 67 में वो असेंबली का चुनाव नहीं कॉन्टेस्ट किया उन्होंने, वो लोकसभा चुनाव लड़के दिल्ली वापस आ गई। चाहती तो कंटिन्यू करती, लेकिन स्टेट की पॉलिटिक्स से वो इतना उब गई थी लोगों के अप्रोच से, जो साथ के ही पॉलिटिशियंस उनकी पार्टी के थे, कि छोड़ के उनको यहाँ दिल्ली लौटाना पड़ा। लोकसभा की मेंबर बन के दिल्ली आ गई। कुछ सरप्राइजिंग रेवलेशंस या कुछ जो फैक्ट्स हैं चीफ मिनिस्टर्स के बारे जो आपने डिस्कवर की अपनी रिसर्च के थ्रू, वो हमारे सुनने वाले के लिए बताइए कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स। नहीं, जैसे बहुत सारी चीजें हैं लोगों को। एक सेकंड चीफ मिनिस्टर होते थे बड़े इंटरेस्टिंग, डॉक्टर संपूर्णानंद जी। ही वॉज अ ग्रेट एकेडमिशियन, जिन्होंने बनारस का नाम चेंज करके वाराणसी किया चीफ मिनिस्टर के तौर पर। जिन्होंने वाराणसी संस्कृत कॉलेज का, वाराणसी संस्कृत कॉलेज का नाम वाराणसी संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाया था, जिसको बाद में उनके नाम से कर दिया गया, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी। तो संपूर्णानंद जी बहुत बड़े एकेडमिशियन थे। लेकिन उनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है जो आपके दर्शकों को पता होनी चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल आदमी इस समय ऐसी गलती नहीं करेगा जैसा उन्होंने कर। वो जिनका मैंने अभी बार बार नाम लिया कि चीफ मिनिस्टर थे चंद्रभान गुप्ता, वो इनको हटा के ही बने। तो चंद्रभान गुप्ता जी जो है वो इनसे इतना झगड़ा इनका होने लगा संपूर्णानंद जी से, कि संपूर्णानंद जी बने, पंत जी जब वापस आए मीन 54 के एंड में, उसके बाद 57 में असेंबली पोल हुए, वो फिर से कंटिन्यू। उनके सबसे बड़े कंपटीटर उस समय थे चंद्रभान गुप्ता हिमसेल्फ, बट ही लॉस्ट हिज असेंबली पोल लाइक केशव मौर्य लॉस्ट इन 2022 फ्रॉम सिराथू। तो लखनऊ की सीट से गुप्ता जी हार गए चुनाव। उसके एक साल बाद उन्होंने, वो बड़ी डैशिंग पर्सनालिटी थी गुप्ता जी, बड़े स्टालवर्ट थे, तो उन्होंने जो है उनके लिए एक एमएलए ने सीट खाली की मौदहा बुंदेलखंड में। वहां से वो दोबारा लड़े बाई इलेक्शन, वो भी हार गए भाई। वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से दोनों चुनाव हारे। उसके बाद उन्होंने 1960 में यूपीसीसी का प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा था, वो लड़े। पहले प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव डेमोक्रेटिक ढंग से होते थे, इसको देख के लगता है। अब वो मुख्यमंत्री कोई ऐसी गलती नहीं करेगा। संपूर्णानंद जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि अगर गुप्ता जी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जीत गए तो मैं रिजाइन कर दूंगा मुख्यमंत्री पद से। सो कैन यू इमेजिन, आज कोई ऐसा कर सकता है कोई पॉलिटिकल आदमी? लेकिन अब वो उन्होंने गलती कर दी, एक स्टेटमेंट दे दिया। उसके बाद अब उनके विरोधियों को क्या करना था? सिर्फ गुप्ता जी को जिताना था। तो सारे लोगों ने मिल करके गुप्ता जी को स्टेट प्रेसिडेंट का चुनाव जिताया। उनको मिले 700 से ज्यादा वोट। और इनके, जिनको संपूर्णानंद जी ने खड़ा किया गुप्ता जी के खिलाफ, एक मुनेश्वर दत्त उपाध्याय होते थे, उनको 100 के आसपास वोट मिले। तो वो बंपर वोटों से गुप्ता जी जीत गए। उसके बाद लोगों ने बोलना चालू किया कि अब तो सीएम साहब को रिजाइन करना चाहिए। अब सीएम साहब थोड़े पशोपेश में पड़े, लेकिन आप उस समय थोड़ा लोग अपनी बातों की कद्र करते थे। वो 1-2 दिन तो कुछ बोले नहीं। उसके बाद उन्होंने नेहरू जी से बात की, प्राइम मिनिस्टर। तो नेहरू जी ने पूछा कि तुमने बोला था कि मैं रिजाइन कर दूंगा? बोले हाँ बोला तो था। तो बोले फिर रिजाइन कर दो। सो दैट इज हाउ ही लॉस्ट हिज चीफ मिनिस्टरशिप, बिकॉज ऑफ हिज दिस थिंग। अब अभी कोई ये इस समय तो कोई सोच भी नहीं सकता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं, जैसे अभी आपने यहाँ पर पढ़ा होगा 2-3 साल 2019 में बीजेपी के 100 के करीब एमएलए ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था लखनऊ।
बीजेपी के ही एमएलए, बट ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था। संपूर्णानंद की सरकार थी तो 50 59 में कांग्रेस के एक बड़े लीडर थे मथुरा के, जुगल किशोर जी। जुगल किशोर की लीडरशिप में 100 एमएलए जो है वो उन्होंने असेंबली में खड़े होकर के कहा, नो कॉन्फिडेंस पर डिबेट हो रही थी, बोला कि हम इस सरकार से खिलाफ हैं, लेकिन हम कांग्रेस के एमएलए हैं तो हम वोट इन्हीं को देंगे, लेकिन हम इनकी पॉलिसी से एग्री नहीं करते। तो मीन्स दे रेज्ड देयर प्रोटेस्ट एंड मैसेज तो कन्वे हो गया। इस तरह की चीजें बहुत होती रहती हैं। देन पीएससी म्यूटिनी 73 का, जिसमें कमलापत त्रिपाठी की सरकार गई, उसमें बाद में पता चलता है कि बाद में जो चीफ मिनिस्टर बने एच.एन. बहुगुणा, उनका ही जो है एक तरह से उन्होंने उसको फ्लेयर अप करने का ये दिया। फिर एक दो चीफ मिनिस्टर थे, बहुगुणा एंड चंद्रभान गुप्ता। चंद्रभान गुप्ता जब 74 में इलेक्शन लड़ते हैं तो उनकी जमानत जब्त हो जाती है, इतने बड़े स्टालवर्ट की आप सोचिए, एंड बहुगुणा वाज चीफ मिनिस्टर दैट टाइम। तो लेकिन 77 में दोनों जनता पार्टी में चले गए, कांग्रेस दोनों छोड़ चुके थे। तो बहुगुणा बहुत जूनियर थे गुप्ता जी से, गुप्ता जी उनको नटवर लाल कहते थे बहुगुणा को। तो बोले नटवर लाल, अब ये तो बता दो यार कि तुमने 74 में मुझे कैसे हराया था, मीन्स मेरी जमानत जब्त हो जाएगी, मैंने सोचा नहीं था। तो जानते हैं बहुगुणा जी ने क्या जवाब दिया? बहुगुणा जी ने बोला कि हमने आपकी मत पेटियां ही बदलवा दी थी। सो दैट दे ही कन्फेस्ड आफ्टर 3 years of 1974। सो ये इस तरह के बड़े बहुत सारे इंटरेस्टिंग वाकये हैं इसमें। ये बहुत ही स्टोरी टेलिंग अंदाज में हमने किताब लिखी है, तो आप अगर आप इनको पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे किस्से ऐसे मिलेंगे। देन एक पब्लिक परसेप्शन है कि राम नरेश यादव की सरकार ने 15% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए लागू किया। ठीक है, लागू किया, लेकिन वो कैबिनेट डिसीजन उसके पहले वाली सरकार का, एनटी तिवारी की सरकार का। जिस दिन कैबिनेट डिसीजन हुआ उसके 4 दिन बाद उनकी सरकार बर्खास्त हो गई, उसके बाद इनकी सरकार आई और इन्होंने लागू किया। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं। मीन्स इतनी बड़ी बड़ी ये पर्सनालिटीज हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपकी जो भी ऑडियंस है कि वो इस किताब को पढ़ें, बहुत ही सिंपल बिल्कुल, लैंग्वेज में बिल्कुल। गई। पर आपके साथ मुझे एक और सवाल है कि यूपी ड्राइविंग फोर्स रही है ये ओबीसी रिजर्वेशन और जी इमरजेंसी, बहुत सारे ओबीसी लीडर्स यूपी से ही रहे हैं। जी। तो ये थोड़ा हमें बताइए कि ऐसा क्यों रहा है? देखिए, ऐसा 50s के बाद से आप भी मानेंगे कि पॉलिटिक्स पर एक खास कुछ तबकों का ही कंट्रोल ज्यादा होता था गवर्नमेंट सिस्टम पर। तो ये शुरुआत तो पहले से हो गई थी। 67 में जब डॉक्टर लोहिया का नॉन कांग्रेस का पहला बड़ा मूवमेंट शुरू होता है, तो उस समय डॉक्टर लोहिया फर्रुखाबाद से बाई इलेक्शन लड़ते हैं 63 का, अमरोहा से जेबी कृपलानी लड़ते हैं, और जौनपुर से दीनदयाल उपाध्याय लड़ते हैं। दीनदयाल उपाध्याय हार गए थे अपना चुनाव जौनपुर से। तो उस समय जो हुआ उस मूवमेंट में हालांकि 2 साल के अंदर डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय दोनों की डेथ हो गई, 67 और 68 में। लेकिन 67 चुनाव के बाद चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी। चौधरी चरण सिंह जाट थे, फार्मिंग कम्युनिटी के थे। उस समय उनकी कम्युनिटी ओबीसी में नहीं थी, लेकिन उनका जो सपोर्ट बेस था वो ज्यादातर ओबीसी थे, फार्मिंग कम्युनिटीज थी, लाइक यादव, कुर्मी, लोथ, इस तरह की गुजर, इस तरह की जो जातियां। तो 67 वाली एंटी कांग्रेस वेव के सबसे बड़े बेनिफिशियरी बन के इमर्ज करते हैं चौधरी साहब। धीरे 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 77 आता है। 77 में राम नरेश यादव बनते हैं चीफ मिनिस्टर। राम नरेश यादव जी बहुत ही सज्जन आदमी थे। इनफैक्ट वो, उनके बारे में किस्से हैं यूपी में कि वो ऑटो रिक्शा पर बैठकर वोट लेने गए थे और रिजाइन किए तो ऑटो रिक्शा पर ही बैठ करके चले आए। लेकिन वो बहुत ही इनइफेक्टिव थे, वो ऑफिसर से काम नहीं करा पाते थे। बहुत सज्जन आदमी थे, ऑफिसर से काम नहीं करवा पाते। तो उस वजह से वो सस्टेन नहीं कर पाए, वो धीरे धीरे वो डिरेल हो गए। उसके बाद थर्ड फेज आती है एंटी कांग्रेस 89 वाली, जब मुलायम सिंह इमर्ज करते हैं। मुलायम सिंह ने पूरा पॉलिटिक्स को कंसोलिडेट किया, और तब से अब तक उनकी फैमिली कैसे राज कर रही है आपको पता ही है। मतलब मीन्स वो फादर सन डुओ व चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी वो थे। साथ में कल्याण सिंह के मुलायम सिंह इधर आ गए तो उधर बीजेपी ने फिर 89 में कल्याण सिंह को आगे किया। कल्याण सिंह इज आल्सो ओबीसी, वो फिर ओबीसी फेस बीजेपी के बड़े लंबे समय तक रहे। फिर तो ये ओबीसी रिजर्वेशन जो 15% दिया पहली बार राम नरेश यादव की सरकार ने, जो प्रैक्टिकली
इम्प्लीमेंट किया तो थोड़ा इन कम्युनिटीज का फिर गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन बढ़ने लगा। और पॉलिटिक्स 90s ऑनवर्ड्स मींस 89 ऑनवर्ड्स तो आप देखेंगे कि सारे ओबीसी लीडर्स फिर उस दबाव में दूसरी पार्टियों में भी प्रोजेक्ट करना पड़ा लोगों को। जब समाजवादी पार्टी इमर्ज करती है, बीएसपी में बहुत सारे लीडर्स आते हैं, तो फिर बीजेपी ने भी अपनी तरफ से अपने ओबीसी फेसेस को प्रोजेक्ट करना चालू किया। तो ओबीसी की लड़ाई जो है एक तरह से यूपी में गैर कांग्रेस की लड़ाई मीन्स आप देखिए 89 में 5 दिसंबर 1989 को जब से मुलायम सिंह यादव ने ओथ ली है यूपी में, दैट वाज द लास्ट डे ऑफ कांग्रेस इन यूपी, कांग्रेस गवर्नमेंट इन यूपी। अब उसके बाद से तो कांग्रेस लौट के आई नहीं हो, इस समय तो एकदम जमीन से खत्म हो गए। आपने देखा अभी लोकसभा में इस बार कुछ सीटें जीत गए, काउंसिल में कोई उनका मेंबर नहीं है, असेंबली में सिर्फ 2 मेंबर हैं। लास्ट टाइम 2019 में तो सिर्फ सोनिया गांधी जी जीती थी, एक ही लोकसभा सीट थी। तो मीन्स यूपी में ओबीसी की जो लड़ाई है, फिर वही एक लाइन में मैं कहूंगा कि इट इज जो कांग्रेस को हटाने की लड़ाई है। हालांकि उसके बाद बीजेपी ने अपना बड़ा बेस एक्सपैंड किया और बहुत सारे ओबीसी चंक को उन्होंने अपने में मिलाया, जो अभी थोड़ा डिसमेंटल होने लगा है। इस लोकसभा चुनाव के रिजल्ट तो यही बताते हैं कि थोड़ा वो डगमगा रहा है बीजेपी से ये, लेकिन दैट इज द होल स्टोरी ऑफ ओबीसी। So, what do you think are the most significant challenges that are facing Indian democracy today? And how do you think they can be addressed? देखिए बहुत लार्जर क्वेश्चन है और मैं बहुत साधारण आदमी हूँ उस पर कमेंट करने के लिए। लेकिन जो यूपी में जो हम लोग देख रहे हैं ना, वो जो चीज आपको चैलेंज लगती है वो धीरे धीरे वो अपॉर्चुनिटी में बदल जाती है किसी के लिए। अब वो आप अब लाइक जैसे ये कास्ट क्लेसेज है ना, वो आप देखेंगे कि बहुत सारा कास्टिज्म है, बहुत मीन्स ये करके आ रहे हैं। लेकिन उसका दूसरा साइड भी देखिए, अगर कांसीराम ने बीएसपी को नहीं बनाया होता और यूपी में कई चुनाव तक वो 10-12% लेकर के, और सिग्निफिकेंट उनका रोल तो बना रहा, लेकिन पावर में नहीं आ पाए। 2007 में जब उन्होंने थोड़ा एक्सपेंड किया, ब्राह्मणों को साथ लिया मायावती जी ने, तब उनको 5 साल पावर में रहने का मौका मिला। लेकिन देखिए इससे थोड़ा मीन्स पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट वो इंक्लूसिव भी हो रही है ना। तो अब मैं तो यूपी के गांव का रहने वाला हूँ। 90s के पहले आप देखेंगे तो जो गांव में रिच क्लास जो होता था वो कुछ एक गिने चुने लोग होते थे और एक कुछ कम्युनिटीज के होते थे। अब वो प्रॉस्पेरिटी थोड़ा एक्सपेंड कर रही है ना। अगर वो डिप्राइव्ड सेक्शंस के या दूसरी और भी कम्युनिटीज के अलग अलग लोग, 2-4 परिवार जो है हर पंचवर्षीय योजना में, मतलब एक असेंबली चेंज होने के बाद कुछ उनके पास रिसोर्सेज आ रहे हैं, कुछ वो तरक्की कर ले रहे हैं, तो ये मुझे लगता है ये अच्छी बात है। और जिस तरह से शेप ले रही है हमारी पॉलिटिक्स, वो लगातार नई पर्सनालिटीज, नई पार्टीज, नई पॉलिटिक्स, नए स्लोगन्स वो लगातार आते रहते हैं। और हमें लगता है कि कुछ ना कुछ उसका फायदा भी है। अकेले नुकसान के तरीके से के नजरिए से नहीं देखना चाहिए इसको। तो हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत सारे लोग हैं जो आपके जैसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट करना चाहते हैं और इस तरीके से जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसके ऊपर लिखना चाहते हैं। आप उनके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आसान तो होती नहीं है और बहुत सारी लड़कियां भी है जो इस फील्ड में ज्वाइन करना चाहेंगी। तो श्यामलाल जी, आप बताइए, व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर विद देम एज योर वर्ड्स ऑफ एडवाइस? देखिए ऐसा है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इज दैट इज माय जॉब दैट आई एम डूइंग। ये जो किताब है इट्स डिफरेंट थिंग। तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, देखिए जर्नलिज्म जो आप 1980 के दौर में जो जर्नलिज्म होता था, आज इट्स एंटायरली डिफरेंट ना। इवन मिड 90s में भी जो होता था वो आज एकदम डिफरेंट है। आप मिड 90s तक आपको ध्यान होगा, 2000 तक इस मिलेनियम के आने तक मैगजीन्स के रीडर बहुत होते थे। आज कोई मैगजीन पढ़ रहा है? कितने लोग पढ़ रहे होंगे आपको भी मालूम, क्योंकि इंफॉर्मेशन अब बहुत तेज हो गई है। तो जर्नलिज्म देखिए, मैं तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ। मेरा मानना है कि हर एक
जर्नलिस्ट जो है वो इन्वेस्टिगेटिव ही होता है। जर्नलिस्ट का मतलब ही नहीं है अगर वो इन्वेस्टिगेटिव नहीं है तो। मैं आपको भी मालूम है, अब जैसा शुरू में आपने कहा था कि नेता लोग एक तरफा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वन वे कम्युनिकेशन है। क्या हमारा अखबार, हमारा चैनल, हमारा जिस मीडियम में भी हम काम करते हैं, क्या ये सिर्फ नेताओं का स्टेटमेंट छापने के लिए है? अगर हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं तो हम जर्नलिस्ट नहीं है। मेरा मानना है कि जर्नलिस्ट इज ओनली इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। तो अच्छा है कि नए नए लोग आ रहे हैं और इधर बहुत अच्छा टैलेंट आ रहा है जर्नलिज्म में। बहुत सारे मैं तो देखता हूँ, बहुत यंग लोग मिलते हैं फील्ड में जो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, नई नई चीजें खोज के ला रहे हैं और बहुत सारे मीडियम भी हो गए हैं। तो ये जो जर्नलिज्म का फील्ड है और इसमें हमें लगता है भी बड़ा स्कोप है और लोग और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बट एक चीज याद रहे कि जर्नलिज्म मीन्स वो अब लोगों की स्टेटमेंट और रिलीज नहीं पढ़ना चाहते लोग। वो तो सब ऑलरेडी आ रही है, ट्विटर पे पढ़ ले रहे हैं उसको। इफ यू हैव नॉट इन्वेस्टिगेटेड एडिशनल ऑन एनी इश्यू, कोई नहीं पढ़ेगा। फिर हर अखबार जब आप पलटते होंगे तो उसमें खोजते होंगे कि इसमें नया क्या है जो बाकी अखबारों में नहीं है। तो उसके लिए तो ऑलवेज देयर इज अ स्कोप एंड वो एक अलग कभी आप क्लास करेंगे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पर। तो आई कैन टेल, बट ये जो किताब लिखने की बात है ये डिफरेंट है। ये तो मैंने एडिशनल टाइम निकाल करके पिछले 4 साल में किया है, क्योंकि ये काम आप ही मानेंगे कि जो हमने किया है वो तो हमारे यूपी के यूनिवर्सिटीज के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट्स वाले क्यों नहीं कर सकते हैं? ये उनका काम है ना। हम तो इसके लिए हमने आपको बताएं कि 1952 से और 2024 तक यूपी असेंबली की डिबेट मैंने एक एक लाइन पढ़ी है। एक एक लाइन पढ़ के उस पहला हमारा नोट्स वहीं से बना था। उसके बाद बाकी रेफरेंसेज हमने उसके, क्योंकि कई अनएडिटेड डिबेट्स होती हैं, आपको मालूम ही है, उसको क्रॉस चेक करना पड़ता है। तो जर्नलिस्ट्स को ऐसा काम हमें लगता है और करना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। और जो आपके ऑडियंस में यूपी के लोग हो या यूपी में जिनकी रुचि हो, चौधरी चरण सिंह पर एक बहुत बड़ा काम किया है पाल ब्रास, जो अमेरिकन प्रोफेसर थे अभी 2 साल पहले, जिनकी डेथ हुई, एन इंडियन पॉलिटिकल लाइफ करके उनकी 3 वॉल्यूम में। लेकिन हमारे ये 21 जो पर्सनालिटीज यूपी की है ना, उसमें मेजॉरिटी है जिन पर काम होना चाहिए उसी तरह का, चरण सिंह जी टाइप का। क्या जीबी पंत में और काम नहीं होना चाहिए? क्या डॉक्टर संपूर्णानंद पे, सुचेता कृपलानी पे, वीपी सिंह पे, सीबी गुप्ता पे और काम नहीं होना चाहिए? क्या बहुगुणा पे और काम नहीं होना चाहिए? एनडी तिवारी का कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है। क्या कल्याण सिंह, मुलायम सिंह और मायावती, इन पे काम नहीं होना चाहिए? तो अभी कंटेम्परेरीज है क्या अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ का जो कुछ भी चल रहा है, इन पर एक इंडिपेंडेंट, अनबायस और क्रिटिकल ढंग से इनके काम का जो है ये नहीं लिखा नहीं जाना चाहिए इस पर। तो मुझे लगता है कि लॉट ऑफ स्कोप इज देयर। हमने तो एक 21 पर लिखा है। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपकी जो ऑडियंस देख रही है और जिनको इंटरेस्ट है, वो 21 में से एक एक पर्सनालिटीज पर ऐसा काम करें अगर कर सकें तो, और जो कि बहुत जरूरी, क्योंकि एक अनबायस्ड तरीके से ये हिस्ट्री लिखने, पढ़ने और देखने का जो हमने देखा कई बार, जो जिसकी सरकार रहती है उसकी एक तरह से कहिए कि बस उसकी तारीफ में चीजें छपती हैं। अनबायस्ड तरीके से उसके काम का आकलन, उसकी पॉलिटिक्स का आकलन वो नहीं होता है। तो इट्स नीड ऑफ द और आई थिंक हम सबको एनकरेज करना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए कि लोग उस पर ज्यादा से ज्यादा काम करें। Thank you so much, Shamlal Yadav, for being on today's podcast. बहुत बहुत अच्छा लगा और thank you, and please we recommend your book for all our listeners, and these were great words of advice for people who want to pursue journalism. A breed of journalists like you are almost becoming extinct, and this was such an honor for me to have you on my show. Thank you so much. Thank you for inviting me.